जस्टिस स्वामीनाथन महाभियोग केस में मुश्किल में फंसी स्टालिन सरकार, पूरा विपक्ष। संसद में अनुराग ठाकुर बोले, एंटी सनातन धर्म का प्रतीक बनी स्टालिन सरकार। I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram Temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. अनुराग ठाकुर ने स्टालिन के मंत्रियों पर लगाया हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप। The Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. To light the lamp, sir. पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब अनुराग ठाकुर संसद में दहाड़े हैं। जिस तरीके से दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, उसको लेकर अब अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर एंटी सनातन धर्म होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कार्तिकेय दीपम जलाने के पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर बढ़ने से रोका और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अनुराग ठाकुर जब संसद में दहाड़े तो वहां पर विपक्ष जो है वो तिलमिला उठा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदू भक्तों को दीप प्रज्वलित करने की परमिशन नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का प्रतीक बन गया है और वहां के मंत्री लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले डीएमके ने ही इसका विरोध किया। स्टालिन की सरकार में ही जो नेता हैं वो लगातार हिंदू विरोधी बयान उनके रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डीएमके के सांसदों का ही ये रुख था कि महाभियोग प्रस्ताव जो है वो जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लेकर आया जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए, तो इसको लेकर ही कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर एक बार फिर से संसद में गरजे हैं और इस मामले पर उन्होंने विरोध व्यक्त किया है। क्या कहा है, सुनिए। I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram Temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. To light the lamp, sir. Sir, my issue is if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily. They slammed the Stalin Sarkar. I would like to put it on record. To your party member also. Why the police is acting in this manner? I have given an opportunity Why the to your Hindus are party stopped? member also. Sir, he was allowed to Justice raise. G.R. Swaminathan did not mince words. You can't He stop. said the state has shown willful disobedience of the order and contempt has been committed, sir. If I have given a permission Sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached.
The contempt has been committed. Sir, the issue is today, while the Ram temple issue came, or the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundram temple. Sir, why did not they allow the lighting of the सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि आपने सुना कि जब अनुराग ठाकुर ये बयान दे रहे थे तो उनके इस बयान पर डीएमके के सांसदों ने कड़ा विरोध भी वहां पर जाहिर किया। लेकिन लगातार मैं ये आपको जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले लोकसभा में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और ये बताया था कि हिंदुओं के पक्ष में एक जस्टिस स्वामीनाथन का ये फैसला जो कि विरोधियों को इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है, उन्होंने उद्धव ठाकरे के सांसदों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए थे। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे और ये साफ किया था कि सिर्फ वोट बैंक के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये मामला क्या है, वो जानकारी मैंने आपको दी थी कि सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर जो है मुदेरू जिले में, वहां पर, और दूसरी ओर सुल्तान बदूशा सिकंदर औलिया दरगाह है। हर साल कार्तिकेय दीपम के दिन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पिल्लैयार मंदिर दीपम मंडपम में दीप प्रज्वलित करने की प्रथा है। इस स्थिति में हिंदू संगठनों ने पहाड़ी की चोटी पर दीप पथून में दीप प्रज्वलित करने की मांग रखी थी। न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि महादीपम को जो है उस पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीप पथून में प्रज्वलित किया जाए, यानी वहां पर दीपक जलाने की एक तरीके से परमिशन जो है वो जस्टिस स्वामीनाथन ने दी थी। इसके बाद जो है वहां पर डीएमके ने इसका विरोध शुरू कर दिया। डीएमके की तरफ से पुलिस का इस्तेमाल करके वहां पर श्रद्धालुओं को रोका गया दीपक जलाने से। याचिकाकर्ता में से एक रामा रविकुमार ने कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर प्रशासन ने दीपथून में महादीपम को प्रज्वलित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो इस मामले में न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता रामा रविकुमार को जो है पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की परमिशन दी। यह आदेश दिया कि वो अपने साथ 10 लोगों को ले जा सकते हैं। 3 दिसंबर की शाम को सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी, जैसा कि मैंने कहा, और इस मामले को लेकर ही लगातार ये सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। लगातार जो है ये बयान राजनीतिक दलों के सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ रहा है, अब वो विपक्षी सांसद जिन्होंने महाभियोग प्रस्ताव जो लेकर आए हैं जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था कि ऐसा मामला आजादी के बाद आज तक सामने नहीं आया कि जब एक जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया गया हो, वो भी एक वर्डिक्ट के वजह से, एक आदेश की वजह से। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का ये मामला जाहिर तौर पर चिंताजनक है और विपक्ष को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से लगातार सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में पूर्व जज उतर आए हैं, कई राजनीतिक दलों के नेता उतर आए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है इस मामले को लेकर, और लगातार इस आदेश का विरोध कर रहा है कि दीपक जलाने की परमिशन क्यों दी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब संसद में कुछ इस तरीके से अनुराग ठाकुर गरजे, जो आपने सुना, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो डीएमके की सरकार वहां पर है, जो स्टालिन सरकार वहां पर है, उन्हें घेरा, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर ही ये जोरदार प्रहार किया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।